Hello everyone. So I welcome you all to the YouTube channel Studify Success, and my name is Vansh, and I congratulate all of you that you have cleared your class 11 successfully, and now it's turn to start your new journey with class 12. So today we are starting our new journey with the subject macroeconomics. That is the one segment of your economics of your class 12. So without further ado, let's take a quick recap what you have studied in your class 11th. Like in your class 11th, you have your microeconomics, right? So there you have studied few of the basic terminologies that is quite useful and helpful for you in your class 12th macroeconomics as well. So let's have a quick recap of that micro segment and we will move further to the macro one. Okay, so in your micro you have studied about individual units. Like what is the meaning of micro? Micro means study of the individual units present in the economy. Like तुम वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो थे हर एक इंडिविजुअल फर्म हर एक इंडिविजुअल यूनिट कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ते हो, ठीक है। और वहां पे तुमने बहुत सारे कंसेप्ट से रूबरू हुआ, ठीक है, फेमिलियर हुए वहां पे तुम। डिमांड एंड सप्लाई यू आर स्टडिंग देयर, ठीक है। यू हैव स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड, प्राइस एंड द सप्लाई, utility, the satisfaction derived by the customer on the consumption of each and additional unit. You have familiar with the cost, revenue, different type of cost, different type of revenue, their graphs, their relation with each other. Then at the end of your this curriculum, you have studied the market equilibrium, the different type of markets, perfect competition, oligopoly, monopoly market, all monopolistic market. So you have familiar with all these terminologies now. These terminologies will be coming in your this year as well, but not the definition, not the relationship, not the graph. You will be using all these concepts with the macroeconomics concepts and understanding a new perspective of the economy, like how economy works. So without further ado, let's start our new journey of macroeconomics. So what is macroeconomics? First, it is very important to understand. Like तुम subject पढ़ने आए हो तो ये subject का meaning क्या पता तो होना चाहिए, obviously, right? So macroeconomics is basically the study of behavior of aggregates covering the entire economy. Like पूरी economy में इतने सारे firm काम कर रहे हैं, इतने सारे businesses operate हो रहे हैं, ठीक है? तो हम हर एक का अगर individual पढ़ने बैठ रहे हैं, हर एक का इंडिविजुअल हम काउंट कर रहे हैं, so it means we are going through with माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। बट अगर मैं बोलूं, मुझे बताओ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसा वर्क कर रही है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो एक एग्रीगेट हो गया, राइट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि सब कुछ एक साथ, ठीक है। सो उस एग्रीगेट के लिए अब आप ये मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। सो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट्स यूनिट्स प्रेजेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई, वही डिमांड सप्लाई सेम ही है, बट अब एग्रीगेट हो गया है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एट अ जर्नल प्राइस लेवल, ठीक है, क्योंकि सबके प्राइस लेवल्स डिफरेंट होते हैं, तो हम एक जर्नल प्राइस लेवल लेके चलेंगे पूरी इंडस्ट्री का, पूरी इकोनॉमी, पूरे सेक्टर का, ठीक है। कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे अपने फर्दर यूनिट्स के अंदर, ठीक है। सो व्हाट आर द कंसेप्ट मैटर्स, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? वी विल स्टडी अबाउट नेशनल इनकम, कि पूरी कंट्री कितना इनकम जनरेट कर रही है, कैसे इनकम कॉम्प्यूटेशन होता है हमारा। मनी एंड बैंकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे बैंक्स वर्क करते हैं, ठीक है। मनी कैसे फ्लोट होता है इकोनॉमी में, ठीक है, कैसे मनी से हम रिटर्न्स लेके आते हैं, कैसे इकोनॉमी को फायदा होता है उस मनी के फ्लो से, कैसे फायदा नहीं होता, ठीक है, कब एक्सेसिव फ्लो हमें नुकसान देता है। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। हम डिटरमाइन करेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी कैसे करेंगे, ये हम एडी और एएस से करेंगे। व्हाट इज एडीएस? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे हम। तो तुम तो कॉमर्स स्टूडेंट हो, तुम लोगों ने सुन लिया होगा था कि एवरी ईयर द गवर्नमेंट इशूज अ यूनियन बजट, राइट राइट। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फरवरी में आता है बजट, ठीक है। अब तक तुमको पता चल ही गया होगा ये वाली बात, राइट। तो हम वो बजट के बारे में भी स्टडी करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किसको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। फिर हम लास्ट में एट द एंड फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ ठीक है, इकोनॉमी में इंटरनल कैसे कामकाज होता है ऊपर पढ़ लिया, एक्सटर्नली कैसे इफेक्ट होता है वो भी पढ़ेंगे।
क्योंकि इकोनॉमी इंडिया की भी होती है, इकोनॉमी यूएस की भी होती है, इकोनॉमी हर एक कंट्री की होती है, तो वहां के हर एक डिफरेंट सिनेरियोज है। बट हमको सबके सिनेरियोज नहीं पढ़ने, हमको ये पढ़ना है कि कैसे इम्पैक्ट करते हैं दूसरे पे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, व्हाट आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स, व्हाट आर द डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ेंगे। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट वेदर फ्रॉम एनी स्ट्रीम, ठीक है, यस, ये प्रोफेसर जेएम कीन्स है। Who is he? Anyone knows? He is the father of modern economics. What is JM? John Maynard Keynes. ठीक है, so being an economic student, it is very important for all of you to remember his name because he is the father of modern economics. उन्होंने बहुत सारी theories दी है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी concepts दी है that is very very useful in your economics. You will be studying either in your higher classes or either in this class also. Few of the concepts only, okay, not in depth. But you must remember his name, being an economics student, right? So without wasting any further time, let's get back to your syllabus. As you have started your new journey of class 12, so आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स की रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट जो तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, यू आर हैविंग टू सेगमेंट्स इन दिस ईयर, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, राइट? तो माइक्रो का क्या वेटेज है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से ही तुम अपने लेसन प्लान, तुम अपने स्टडी प्लान क्रिएट करोगे, ठीक है? तो दिस इज द सिलेबस, ठीक है? इसमें नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट रिलेटेड एग्रीगेट्स हमारे पास, नेशनल इनकम के बारे में पूरा ये एक यूनिट है, ठीक है? मनी एंड बैंकिंग वी आर हैविंग, टर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, या क्या होता है कोई भी वर्ड अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो वी विल बी गेट going in deep detail of every concept in further videos, so don't worry at all, and ये journey will be become very smooth for all of you. Don't worry at all कि माइक्रो कैसे निपटेगी। भाई माइक्रो तो मुश्किल थी 11th में, समझ नहीं आई, ग्राफ्स रिलेशन समझ नहीं आए, ठीक है, क्या मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इंडिविजुअल तो पढ़ नहीं पाया, एग्रीगेट कैसे पढ़ूंगा, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है? ये अब तुम्हारी जर्नी जो है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है? तो बस कुर्सी की पेटी बांधो और नाउ गेट बैक टू द वर्क, ठीक है? एंड बस नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, ठीक है? रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करो, और कुछ भी समझ ना आए तो ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? सो we will be starting with our unit 1 in the next video, in the next lecture, so let's get a quick intro about that, ठीक है? क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि नेक्स्ट वीडियो काम की भी है नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है? तो लेट्स सी whether this what is this unit comprises of, ठीक है? सो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कौन कौन से कंसेप्ट यूज होंगे, कौन कौन से वेरियस चीजें हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है? क्योंकि भाई उधर जो पढ़कर आए हो ना 11th में, वो तो सिर्फ डेफिनेशन में वर्ड्स आएंगे, अब उससे कोई कंसेप्ट नए नहीं निकलने वाले, ठीक है? बट यहाँ पे उनके नए कंसेप्ट के, ओके? मुश्किल नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट ऑल, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है? माइक्रो से तो बहुत ही आसान, ठीक है? तो डोंट वरी। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम कैसे घूमती है, किसी ने कमाया, किसी ने खर्च किया, फिर किसी जब खर्च कर तो किसी और ने भी तो कमाया ही होगा ना, ठीक है? जहाँ पे तुम खर्च करके आए तो कैसे पूरी गाड़ी चलती है उसकी, हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? एंड एट द एंड ऑफ दिस यूनिट वी विल बी स्टडिंग हाउ टू कंप्यूट नेशनल इनकम। There are various methods, ठीक है, जिससे computation होता है, various things that you must understand about the things, ठीक है? So और at the last GDP, important concept है भाई इकोनॉमी का, GDP तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? तो GDP के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, ठीक है? कैसे GDP इम्पैक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को, तो we will be getting all these things in this video, okay? So thank you so much for this video. This is an introductory video for your subject. ठीक है? And stay tuned with this journey. And in the next lecture, we will be starting our first unit, that is national income and its related aggregates. So till then, stay safe.